नायला की शादी आपने अपने भाई के घर? हाँ जी, भतीजे ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਕੀ? ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, 3 ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। आपको जब पता था कि इनके साथ ये करने वाले हैं, तो आप अपनी बेटी को वापस क्यों नहीं ले? ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। तो आखिरी टाइम आप नायला को लेने के लिए, उसकी डेड बॉडी लेने के लिए अपनी बेटी की गए हैं, तो क्या वो लोग भी साथ आए, जनाजे में शिरकत की? ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। अभी तक आपने कोई पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस कार्रवाई इसलिए नहीं की कि पुलिस भी वो पैसे वाले हैं, पुलिस भी हमें घुमाएगी इधर उधर, हमें अपनी जान का भी खतरा है। भाई की बहू फौत हो गई। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵੇਖਿਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आज जिसमें घर में मौजूद हूं, इनकी बेटी नायला, जो कि आज से 10 साल पहले इन्होंने गुजरांवाले अपनी भाई के घर जो है वो ब्याही और बड़ी खुशी खुशी उसको वहाँ पे रुखसत किया और वो अपनी अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गई। इनका भतीजा जो है वो दुबई में काम करता था और उसके बाद उस लड़की को जो है उसकी ससुराल में जिस भी तरीके से रखा गया, वो सारी बातें ये आपके साथ उसकी वालदा से शेयर करेंगे। लेकिन असल वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि कहा जाता है कि बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन उनके घर 7 साल बाद अल्लाह ने एक बेटी दी और उसके 2 साल बाद अल्लाह ने एक और बेटी से नवाजा। लेकिन शायद उन लोगों को ये गवारा ना हो सका कि हमारे यहाँ फिर बेटी की पैदाइश हो गई है, तो उन्होंने नायला की जान ही ले ली। अब नायला की जान किस तरीके से ली गई, नायला की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, ये सारी दास्तान आप सुनेंगे तो आपका दिल खून के आंसू रोएगा। आप खुद ही सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ਮੇਰੀ ਨਾਲਾ ਬੈਠੀ ਸੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਂ ਲਈ ਆ। माँ जी, कितने नायला की शादी आपने अपने भाई के घर? ਹਾਂ ਜੀ, ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜੀ ਹੈ। मेरा मतलब है कि नायला की जिस वक्त ये बेटी अल्लाह पाक ने पैदाइश उसकी होनी थी, उससे पहले उसका खामन दुबई से वापस आ गया। 2-3 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਆ तो इन्होंने कौन से हॉस्पिटल में जाके करवाया ये? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। घर के अंदर ही डिलीवरी कर दी? ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਨੇ। उसकी माँ ने खुद ही ऑपरेशन? ਹਾਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਟੱਕ ਲਾਏ, ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖੜੇ, ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇ ਮਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਖੜੋ, ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਛੜੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੀ ਆ। मतलब इस बात की आपको कंफर्मेशन है कि उसकी वालदा ने, आपकी जो है भाभी है, उसने घर में ऑपरेशन? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਪੀ ਕੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰਾਂ ਦੁਬਈ ਖੜਿਆ ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਾੜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਛੜੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ नहीं कर सकती, मैंने इंसाफ दो, मैं की कर सकती हाँ। तो ये उसका नायला का हस्बैंड है, ये देख लें इसकी तस्वीर। और ये एक बेटी जो अल्लाह पाक ने 7 साल के बाद इनको दी है, ये इसके कंधों पे है। और उसके 2 साल बाद अल्लाह पाक ने फिर एक बेटी से इनको खुशी देना चाहिए, जिसके बाद इनको पता लगा कि हमारे यहाँ बेटी होने वाली है। और बेटी के ही दुख में जो है इस शख्स ने दुबई से वापस आके अपनी वालदा के साथ मिल के, इनकी लड़की की नायला की वालदा के मुताबिक कि घर में जो है वो ऑपरेशन किया गया। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਮੈਂ 3 ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਮੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਛੜੀ ਥਾਨਿਓ। आपको जब पता था कि इनके साथ ये करने वाले हैं, तो आप अपनी बेटी को वापस क्यों नहीं लेके आ गए? ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਹੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, 3 ਦਿਨ ਉਹ ਲੁਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। कि वहाँ पहुँचने के बाद 3 दिन हॉस्पिटल में भी रखा इन्होंने। ਆਹ 3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਮਸਨੂਈ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਸਨੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਵਾਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਚਲੋ ਉਧਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 150 ਬੰਦਾ ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰ ਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਸੀਆਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਘਰ, ਉਹ ਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਫਿਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈ ਨੇ, ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ। बिल्कुल जी, नायला के वालिद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? सईद अहमद मेरा नाम है। अच्छा सईद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, मैं तो सुना है और मैं परेशान हो गया हूँ। तो आपके नोटिस में जब ये सारी पहले बातें थी तो अपनी बेटी को आप जाके मिलते नहीं थे? मिलता था मैं, लेकिन बेटी यही बोलती थी कि मैंने अपना घर बसाना है, जिस तरीके से भी बसाया जाए, चाहे ये जुल्म करेगा फिर भी मैं अपने घर में ही रहूँगी। मतलब कि वो आपको इसलिए नहीं बताती थी कि मेरा घर ना खराब हो? मेरा घर ख़राब ना हो इसलिए बताती नहीं थी। बहन से बात बूत कर लेती थी, हमारे साथ नहीं करती थी। उसको भी बोलती थी कि अम्मा अब्बा को नहीं बताना। अभी जब आखिरी टाइम आप नायला को लेने के लिए, उसकी डेड बॉडी लेने के लिए अपनी बेटी की गए हैं, तो क्या वो लोग भी साथ आए, जनाजे में शिरकत की उन्होंने? नहीं, जनाजे में शामिल ही नहीं हुआ खामद? ਨਹੀਂ क्यों? ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ इस वजह से आपको शक हुआ कि इन लोगों ने ही मारा है? शक नहीं हुआ, ये कन्फर्म है। शक किस बात का है? जब भी घर से वो जान निकाल के मार के लेके गए हैं, घर में ऑपरेशन किया है तो घर में ही वो मरी है ना, बाहर तो नहीं मरी। हॉस्पिटल में तो वो मरी को लेके गए हैं। तो नायला ने आपसे कोई रब्ता नहीं किया, फ़ोन पे नहीं बताया? नहीं, फ़ोन पे रब्ता उसने किधर करना था? फ़ोन पे रब्ता तो वो करना ही नहीं देते। जब भी खामद घर में होता फ़ोन में रब्ता नहीं करती वो, पाबंदी होती है उसके ऊपर, पाबंदी होती है, फ़ोन नहीं करने देते। मेरा मुतालबा यही है कि हम गरीब लोग हैं, हम तो इधर उधर भाग दौड़ नहीं सकते, पुलिस के चक्कर नहीं काट सकते, तो हमें इंसाफ दे। जो हमारी बेटी के साथ जुल्म हुआ है हमें उसका इंसाफ चाहिए। आज 2 रोज़ हो गए हैं उसको फौत हुए हुए, अभी तक आपने कोई पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस कार्रवाई इसलिए नहीं की कि पुलिस भी वो पैसे वाले हैं, पुलिस भी हमें घुमाएगी इधर उधर। वो पैसा दे के फिर निकल जाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर? हमें अपनी जान का भी खतरा है। वो बदमाश तरह के लोग हैं, बदमाश टाइप के लोग हैं। ਰਾਜ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਖਲਾਰੀ ਹੈ। वो तो लाश कार्रवाई नहीं करेंगे? आपकी बेटी भी फौत हो गई और आप कार्रवाई भी कोई नहीं करेंगे? ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ। ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ बेटी ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ बस। बिल्कुल, वो बच्चियां जो हैं, जो नायला की बेटियां हैं, वो अब कहाँ पे हैं और क्या इनके घर से वहाँ पे पहले कोई गया था जिसने ये सारा मंजर देखा? क्यों जी, नायला की बेटियां जो हैं वो रख ली हैं उन्होंने? जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾੜੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ। तो आप लोगों ने तकाजा नहीं किया कि इसकी बेटियां दो? नहीं, हम तो कर ही नहीं ना सकते, वो तो उनका घर था, वो कैसे हमें देंगे? ये तो कोर्ट कचहरी का काम है ना। तो आपके घर से वहाँ कोई नहीं गया हुआ था नायला के पास? गए हुए थे, हमारी पोतरी एक गई हुई थी, हमने पहले से उधर भेजी हुई थी। उसने ही हमें सारा कुछ बताया था जो उधर हुआ। बाद में उन्होंने पकड़ के तो उसको कमरे में बंद कर दिया, गन पॉइंट पे। गन इनके पास है, पता नहीं जायज़ है नजायज़ है क्या है। उसको डरा के, बच्ची थी छोटी, वो डर गई है तो उसको बंद कर दिया और उसका मोबाइल छीन लिया। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। मोबाइल भी छीन लिया और उसको कमरे में बंद कर दिया। हाँ, जब ये हॉस्पिटल में गए हैं, बच्ची छोटी को लेके जो पैदा हुई थी, जो कट करके इन्होंने निकाली है, तो जब भी उसको छोड़ के आए हैं तो बाद में इन्होंने आके तो उसको खोला है। जब भी खोला है तो ऊपर हमारी बेटी पड़ी हुई थी, उसको बाद में उठा के गाड़ी में मरी हुई को डाल के तो ले गए हैं। अच्छा, ये आपको सारा आपकी पोती ने बताया? पोती ने बताया। उसको भी डराते रहे? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਣ ਡਈ। ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ।
ਇਸ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 ਦੇ 5 ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਰੀਮ ਨਿਆਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਜੇ ਸੋ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੁੱਢੀ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ। और बीवी में से मतलब बेटे की ख्वाहिश थी? ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਗਈ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਨੈਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਧੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹਰਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਖਰੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਧੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ मौका ना दो, इनको भागने का मौका ना दें। नाज़रीन बहुत अफसोसनाक बात है जो आप तक पहुंचाई है। तो मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पे बहुत दुख है कि एक सफ़ेद पोश माँ बाप जिन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ अपने रिश्तेदारों के घर अपनी बेटी को ब्याया और उनकी बेटी के साथ क्या सलूक हुआ। नाज़रीन आज एक दिन गुजर गया है, कल कुल थे नायला के। आपको मैं दिखाता हूँ कि कब्रिस्तान की क्या सूरत हाल है। इन्होंने ख़ुद से ही दफनाया, ना नायला का खावंद बीच में आया, ना सास, ना ससुर, ना देवर जेठ, कोई भी नहीं आया। माँ बाप ने अपनी बेटी को अपने हाथों से दफनाया। जी बिल्कुल, मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और मैं उस कब्र के ऊपर मौजूद हूँ, उस नायला की कब्र पे मौजूद हूँ जिसका सिर्फ कसूर ये है कि उसके यहाँ बेटी पैदा होने वाली थी। लोग तो बेटी को रहमत समझते हैं। जिन लोगों के घर में बेटियां होती हैं वो तो खुशियां मनाते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें बेटी दी है। नबी पाक का फरमान है कि जिसके यहाँ बेटी है उसके रिज़्क़ का ज़िम्मेदार मैं हूँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेटी की पैदाइश से पहले क्या सलूक किया गया कि नायला को कब्र में पहुँचा दिया गया। बूढ़े माँ बाप जो हैं इस वक्त नायला की कब्र पे खड़े हैं, तो आपकी इनसे बात करवाते हैं कि ये सारा वाक़या क्या है, यहाँ तक नायला किस तरह पहुँच गई। क्यों माँ जी आज आप कब्र पे आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं चाहना चाहिए मरियम नवाज मेरे इंसाफ दे दे, मरियम नवाज मैंने इंसाफ दे दे। मेरे और कोई मेरी बेटी तो तुर की दुनिया तो मैंने इंसाफ होना चाहिए है, मैंने इंसाफ दे। मेरा मैं गरीब औरत सा, मेरा इंसाफ दे दे। वो पैसे वाले लोग सी, असी गरीब सा। साड़ी धी नूं घरों ने इस सस ने केस करके उन्हें टक ला के साड़ी धी नूं घरे मुका के ते लैके तुर गए ने, लैके तुर गए। 2 अपनी गड्डी विच लैके गए ने, 2 हॉस्पिटल जवाब दे दिता। मरी तो हैगी सी, जवाब ही होना सी। फिर किसी ने मशवरा दिता एंबूलेंस का, एंबूलेंस विच लैके गए ने। उन्होंने अगों जब आपने नायला की शादी की तो बड़ी खुशियां मनाई और बहुत खुशी से अपने भाई के घर उसको ब्याया, और आज आप नायला की कब्र पे खड़ी हैं, तो क्या फीलिंग है आपकी? क्या कहना चाहेंगे? नायला के साथ ज्यादती आपने की है या कुदरत ने उसके साथ अच्छा नहीं, ये सस ने की, बंदे ने की है, ये तमूर ने की है, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਿਆ। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਹਰਬਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। उन्होंने सोच लिया था कि इसको जान से मार देना, हाँ जान से मार देना है, इसको रास्ते से हटा देना। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਿਆ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਨਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਨਾ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ।
ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਸਾਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਮੂਰ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਰਾਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀ ਕਰ आपका दामाद कहते हैं? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਮੂਰ ਨੇ बाजी यहाँ तो किसी का जनाजा सड़क पे जा रहा हो तो लोग खुद से शामिल हो जाते हैं कि एक जनाजा आ रहा है, अदब एहतराम करते हैं। तो उसकी बीवी फौत हो गई, आपके भाई की बहू फौत हो गई, क्या जनाजे में कोई नहीं आया? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾ ਛੜੀ ਸਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ मैं गरीब बंदा मैनू इंसाफ ਇਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ मैं कुछ नहीं और मांग बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त बुजुर्ग बाप जो है बेटी की कब्र की तरफ देख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत दुख है इस पे कि हवा की बेटी का जिक्र तो किया जाता है लेकिन आज एक बेटी को है कब्र के अंदर पहुंचा दिया गया। क्या कहेंगे? सर जी कहूँगा क्या, हमें तो इंसाफ चाहिए इनसे। इन लोगों ने कब्र के अंदर कत्ल करके पहुँचाया है। क्या आपकी आखिरी टाइम उनसे क्या बात हुई, आपकी बेटी के ससुराल वालों? मेरी तो उनसे कुछ बात ही नहीं हुई है, हम तो हॉस्पिटल में गए हैं सीधे, हमें मालूम पड़ा तो हम तो सीधे हॉस्पिटल में गए हैं। इनसे तो बात ही कोई नहीं हुई हमारी। हम 3 दिन उधर रहे हैं, बाद में लाश लेके ये भाग रहे थे तो पीछे से हमने पकड़ी है, फिर लाश भी उधर जाके इन्होंने घर में दी है। बाद में बोलते हैं आज से रिश्तेदारी ख़त्म, इधर नहीं आना आप। मतलब लाश आपके हवाले करके कहते हैं रिश्तेदारी खत्म? रिश्तेदारी ख़त्म है, आज के बाद हमारे घर में नहीं आना आपने, हमारे दरवाजे आपके ऊपर बंद हैं। अच्छा जी, नायला को बुरे तरीके से मार दिया गया, क्या आप पुलिस के पास जाएंगे, कोई पर्चा कटवाएंगे? ज़रूर जाएंगे, पर्चा कटवाएंगे पुलिस से, अगर काटेगी तो ये हम आला काम से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी फरियाद सुनी जाए, और मरियम नवाज़ को भी फरियाद करते हैं कि हमारी फरियाद सुने। आप क्या कहना चाहेंगे, उन मुलजमान को क्या सज़ा होनी चाहिए? बेटा जिस तरह मेरी बेटी नाल कीता है जुल्म इन्हां नाल भी जुल्म होना चाहिए है। मेरी बेटी ने जुल्म किया, मेरी बेटी तो आनी को नहीं, इन्होंने भी इंज जुल्म होवे तो मैं भी वेखा, मैंने सबर नहीं जो आउन दिया भी, मैंने सबर नहीं आता। मेरी बेटी मैनू अजे तक भी है, मैं आके अगे भी वेख के गई हाँ, मैनू सबर नहीं आता। मेरी बेटी ने जड़ा जुल्म कर छड़िया, मेरी बेटी ने बड़ा बड़ा जुल्म करता। तुसी ये मरियम नवाज तेरे अगे इको मैं अर्ज करनी हाँ, मेरी बेटी का इंसाफ दे दे। ये बंदे आए ने बाहरों, इन्हें दौड़ना है, बहुता टाइम ना लागे मैनू, ये चले गए तो मेरा कुछ नहीं बन सकता। इन्हों फौरन ही इन्होंने उत्ते करो कि ये मेरी बेटी का कोई इंसाफ मैंने मिल जाए। एक जवान लड़की की जान ले ली गई और उसके बाद जो है उसके माँ बाप को उसके हवाले लाश कर दी गई, और बाद में कहा जा रहा है कि आज के बाद हमारी आपके साथ रिश्तेदारी ख़त्म है। नायला की 2 बेटियों को तो उन्होंने संभाल लिया, लेकिन अपनी इज़्ज़त और अपनी गैरत को कैसे संभालोगे जब किसी की बेटी के साथ ऐसा सलूक करोगे? नायला मनो मट्टी तले चली गई है, लेकिन तुम लोगों ने भी वहीं पर ही जाना है जिन्होंने जुल्म किया है। नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। तो मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से और तमाम उन आला अफसरान के साथ कि जिन्होंने इनके साथ इतनी बर्बरियत और इस तरह का जुल्म किया है, उनको कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।